Hello student, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College Vapi. Our subject Principles of Management, subject code 105 in your FI BBA in your semester 1. Today we are moving towards the another management thought, that is Frederick Taylor scientific management. Now, this scientific management has arises from the need to increase productivity. When in your entrepreneurship, when in your company or a business, you need to increase your productivity, then you need to have an approach of scientific management. The founders and the developers are Frederick Taylor, Henry Gann, Frank, and Leland. These are the developer. They are the developer and they are the founder related to scientific management. Now, this management approach is been formulated by Frederick Taylor, and even he has determined scientifically the best method for performing any task and for selecting, training, and motivating the worker. फेडरिक टेलर ने क्या किया है कि उसने साइंटिफिक मेथड और बेस्ट मेथड उसने डिटरमाइन किया है टास्क परफॉर्म करने के लिए, और सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग का तो मोटिवेटिंग वर्कर उसमें भी बेस्ट मेथड उसने डिटरमाइन किया है एंड आइडेंटिफाई किया है. The main objective was improving economic efficiency and even the labor productivity. Now, he emphasizes that the work should not be taken for granted, but the work should be taken seriously. The main basis of the scientific management is that each task, जो भी आपको task दिया गया है, it should be scientifically designed so that we can replace the rule of thumb method from a traditional method. Second, आपका क्या हो सकता है कि workers must be scientifically selected and they should be properly trained so that they can be more productivity on their job. वर्कर्स को साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, उसको ट्रेन करना है साइंटिफिकली वे में, साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके, जिससे प्रोडक्टिविटी उसके जॉब में बढ़ सकती है. इवन देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ लेबर एंड अ कोऑपरेशन बिटवीन अ मैनेजमेंट एंड वर्कर. देयर मस्ट बी अ डिवीजन ऑफ लेबर एंड कॉपरेशन अमॉन्ग द मैनेजमेंट एंड वर्कर. जब आपको साइंटिफिकली वे में आप जॉब डिजाइन करोगे, आप अपने वर्कर्स को साइंटिफिक वे में सिलेक्ट करोगे, सो देयर विल बी ऑलवेज बी अ प्रॉपर मैच बिटवीन अ जॉब डिजाइन एंड योर वर्कर्स प्लेसमेंट. सो दैट इज अ फेडरिक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच. Now, what was the key concept about the scientific management that Frederick Taylor has imposed? The first one is scientific task planning. Now you can see scientific task planning in that कोई भी आपका अमाउंट ऑफ वर्क है, एन एवरेज वर्कर शुड परफॉर्म ड्यूरिंग अ डे, ठीक है, अन नॉर्मल वर्किंग कंडीशन. यहाँ पे मैनेजमेंट में ये डिसाइड किया एडवांस में कि कौन सा काम करना है. साइंटिफिक टास्क प्लानिंग की बात कर रही हूँ. यहाँ पे फेडरिक टेलर ने ऐसा बोला कि मैनेजमेंट शुड डिसाइड इन एडवांस व्हाट वर्क टू बी डन, हाउ, व्हेन, वेयर एंड बाय whom. What work is to be done, again how, when, where and by whom the work or management should be decided. That was the ultimate goal is to see that work is being done in a logically sequence, promoting a maximum efficiency. That was the approach, that was the concept being focused by the Frederick Taylor. Second one is the time and motion study. Now, time and motion study have been advocated by Taylor only with a view that wasteful or unproductive motion on the job can be reduced. The time study would indicate that minimum time required to do a given job, and for each job time, standard time is being specified. And motion study is being carried out to find out the best sequence of motion to do a job. The main aim is to eliminate or reduce unnecessary or ill-directed and a wasteful motion. Again, I'm repeating, time and motion study is being imposed and being developed by a Frederick Taylor only. उसने ये बोला था कि हर एक जॉब के लिए आप स्टैंडर्ड टाइम स्पेसिफाइड करोगे और हर एक बंदे को बोलोगे कि ये जॉब इतने टाइम में कंप्लीट करना ही है, तो आपका टास्क जो है वो बेस्ट तरीके से कंप्लीट हो सकता है एंड विद इन द टाइम आपका कंप्लीट होगा. एंड मोशन में भी उसने ये बोला है
कि जॉब में आपका अननेसेसरी मोशन नहीं है, तो उसने डिटरमाइन किया है कैरिड आउट कि कौन से बेस्ट सीक्वेंस ऑफ मोशन से आपको अपना जॉब करना है। तो टाइम एंड मोशन स्टडी ने हैव बीन एडवोकेटेड बाय टेलर विद अ व्यू टू रिड्यूस द अनप्रोडक्टिव मोशन और अ वेस्टफुल मोशन ऑन द जॉब। टाइम स्टडी में आपको इंडिकेट ये किया जाता है, टाइम स्टडी का वुड इंडिकेट द मिनिमम टाइम जो जॉब के लिए रिक्वायर होता है एंड फॉर ईच जॉब टाइम स्टैंडर्ड टाइम स्पेसिफाइड किया है। मोशन स्टडी इज बीइंग कैरिड आउट टू फाइंड द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ मोशन टू डू अ जॉब। Main aim of time and motion study is to reduce, eliminate unnecessary, ill-directed and wasteful motion. The third one, that is the most important, that is standardization. Now, under scientific management, standardization have to be set in advance for the tasks to be completed, material to be acquired, work methods to be followed in your production technique, quality of the product, even time to complete and to achieve your objective, cost to be reduced for each and every methods and working condition. तो scientific method में standardization कैसे follow किया गया था कि आपको यहाँ पे हर एक कंपनी में standardization should be follow in advance। जो आप टास्क कर रहे हो, आप जो मटेरियल एक्वायर कर रहे हो, जो आप मेथड यूज कर रहे हो आपकी प्रोडक्शन में, क्वालिटी में स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम स्पेसिफाई करना चाहिए हर एक एक्टिविटी का, कॉस्ट कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होना चाहिए वो स्पेसिफाई करना चाहिए, वर्किंग कंडीशन कितनी आपका स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए वो स्पेसिफाइड करना चाहिए। तो वो हर एक चीज साइंटिफिक मैनेजमेंट में इम्पोज किया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में स्टैंडर्डाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया है। Next one is your differential piece rate system. In order to motivate your workers, wage incentives were developed in the most scientific management program. Taylor advocated a differential piece rate system based on the actual performance of the worker. That is कि workers की performance के हिसाब से उसको piece wage सिस्टम आइडेंटिफाई किया था जिसे वर्कर्स अप्रिशिएट हो और जिसे वर्कर्स को मोटिवेट किया जाए। जैसे कि ए एंड बी वर्कर है, ए वर्कर ने बहुत मेहनत की है तो ए वर्कर को वेजेस ज्यादा दिया जाएगा, तो बी वर्कर को मोटिवेट होगा कि हम ज्यादा काम करते तो हमें यहाँ पे वेज के हिसाब से अमाउंट ज्यादा मिलता है। दैट विल बी अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर द वर्कर्स टू डू देयर वर्क इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। दैट वाज अ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। And next one and last one, that is your functional and foremanship. In order to achieve a better production, better control, Taylor advocate functional foremanship where the factory is divided into into different components, into different specialized, into different department, into different division, just to take an advantages of the specialization and just to have a functional and foremanship activity, just to have a functional activity or function department। पूरी फैक्ट्री को डिवाइड किया है इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट स्पेशलाइज्ड, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिवीजन। इसलिए बहुत सारे डिवीजन होते, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते कंपनी में, जस्ट टू हैव अ फंक्शनल एक्टिविटी। So that was your key concept of the scientific management. अगेन आई एम रिपीटिंग कि व्हाट इज फ्रेडरिक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसका मेन इम्पोर्टेंट क्या था कि आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच यू कैन अप्लाई इट। ठीक है, यहाँ पे जो फाउंडर एंड डेवलपर है वो कौन है? फ्रेडरिक टेलर है, हेनरी है, फ्रैंक है एंड लीलन है। ठीक है, उसके बाद ये मैनेजमेंट अप्रोच है बिन किससे फॉर्मुलेटेड हुआ है? फ्रेडरिक टेलर से फॉर्मुलेटेड हुआ है और यहाँ पे डिटरमाइन किया है साइंटिफिकली द बेस्ट मेथड जो आप टास्क परफॉर्म करने वाले हो का। तो आइडियल हाउ टू सेलेक्ट योर एम्प्लॉय, हाउ टू ट्रेन योर एम्प्लॉय एंड हाउ टू मोटिवेट योर वर्कर्स। Next main objective of scientific method just to improve your economic efficiency and especially a labor productivity। यहाँ पे emphasis वर्क को ज्यादा किया है, वर्क को ऐसे ग्रांटेड के वे में नहीं देखा गया है पर वर्क को सीरियस वे में दिखा गया है। उसके बाद हमने देखा कि कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं। तो साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, जब भी कोई टास्क करने वाले हो उससे पहले आप एडवांस में डिसाइड कर लो कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करोगे और किससे करवाओगे। टाइम एंड मोशन स्टडी में ये देखा कि हर एक जॉब का स्टैंडर्ड टाइम स्पेसिफाई होना चाहिए और उस हिसाब से उसी टाइम में आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए।
मोशन में भी वही सीखा कि हर एक जॉब में मोशन डिसाइड होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ मोशन डिसाइड होना चाहिए, जो अननेसेसरी मोशन है वो एलिमिनेट कर सके। स्टैंडर्डाइजेशन शुड बी मेंटेन इन ईच एंड एवरीथिंग, वेदर वो टैक्स हो, मटेरियल हो, वर्क मेथड हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो, टाइम हो, आपका कॉस्ट हो, वर्किंग कंडीशन है। डिफरेंशियल पे सिस्टम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि जिससे हम हमारे वर्कर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। एंड फंक्शनल एंड फोरमैनशिप, जहाँ पे पूरी फैक्ट्री को डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइडेड किया गया है। तो दैट वाज योर की कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। होप जस्ट go to the video and then we will discuss in our online lecture. Thank you, students.